ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਨਕੁਲ ਕੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡੀਆਈ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੀਆਈ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ 2021 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਰਐਸ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। कहता एट अ पार्टी देयर आर 3 लार्ज पिज़्ज़ास ऑफ इक्वल साइज। स्टेटमेंट ਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ। 3 ਪੀਜ਼ਾਸ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। each pizza has been cut into 9 equal pieces. 8/9 of the first pizza is eaten, 2/3 of the second is eaten and 7/9 of the third is eaten. मैं ना बच्चों ने एक चीज़ समझाना होना, डिनोमिनेटर के हिसाब अकॉर्डिंगली सपोज कर डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंगली। तो डिनोमिनेटर की है 9 3 ते 9। तो मैं मान लिया 3 जेडे पिज़्ज़ास ने, मैं एक तरह के बॉक्स जी बना देना, ठीक है। वैसे तो गोल होंगे, ठीक है। 3 जेडे पिज़्ज़ास ने तीनों 90 90 ते 90 सी, ठीक है। 90 किलो मान लो, कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। 90 क्यों मनिया? क्योंकि डिनोमिनेटर 9 3 9 सी ते पार्ट्स भी 9 इक्वल ही करने से। जे डिनोमिनेटर 9 ते 7 होंगे मैं 63 मान लेंदा या 630 मान लेंदा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर 90 90 90 मान ले। हुण कहंदा 8/9 ऑफ द फर्स्ट पिज़्ज़ा इज ईटन। ਇਹਦਾ 8/9 कितना ਹੁੰਦਾ है? 80। 80 ईटन हो गया, 80 खा लिया, तो बचा कितना? 10। 2/3 of the second pizza has been eaten, right। 2/3 ਇਹਦਾ खा लिया तो बचा कितना? 2/3 ਹੁੰਦਾ 60। 60 चला गया तो बचा कितना? 30। उस तो बाद 7/9 of the third pizza has been eaten। तीसरे पिज़्ज़ा ਦਾ 7/9 खा लिया तो कितना बचेगा? तो 7/9 कितना ਹੁੰਦਾ? 70। 70 चला गया तो बचा कितना? 20। पूछा कि what fraction of 3 pizzas is left। 3 पिज़्ज़ास का कितना कंटेंट बचा? पहले का 10, दूजे का 20, तीजे का 30। तो 10 30 ते 20 कितना होता है? 60। 60 आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना सी? 90 90 90। टोटल कितना सी? 90 90 90 इज 270। तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋ, 2/9। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬੋਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਹੀ OBS ਦੇ ਥਰੂ ਨਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਹੈ ਨਾ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਹਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ क्लास आ जाएगी चंगी तरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आ गया अपने को परसेंटेज का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये दसदा है पर सब तो पहला परसेंटेज का चैप्टर चंगी तरह करो। DA भी दस रही सी परसेंटेज का चैप्टर चंगी तरह करो। तो परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी स्टार्ट करने तो पहला। According to a survey at a company, 20% of the employees owned cell phones in 1994 and 60% on cell phones in 1998. From 1994 to 1998, what was the percentage increase in the fraction of employees who owned cell phones? कितना परसेंट इंक्रीज हो गया बेसिकली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 100 एम्प्लॉय सी, ठीक है। ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ एम्प्लॉय सी? 100। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20% एम्प्लॉयज़ सैलफोन ਹੁੰਦਾ ਸੀ, यानी किन्ने एम्प्लॉयज़ ਕੋਲ सैलफोन ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 20। किन्ने एम्प्लॉयज़ ਕੋਲ सैलफोन ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 20, राइट। किन्ने एम्प्लॉयज़ ਕੋਲ सैलफोन ਹੁੰਦਾ ਸੀ? 20, राइट। ਤਾਂ 100 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 20।
ਹੁਣ 1998 60% ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਕੋਲ ਸੈੱਲਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 60 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ that is 60 ਪਹਿਲਾਂ 20% ਕੋਲ ਸੀ ਹੁਣ 60% ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਤੋਂ 60 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲਿਊ upon initial value multiply by 100 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200% ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 200% ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲਿਊ upon initial value multiply by 100 ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ फ्रैक्शन क्यों लिखा हुआ है इत्थे मैं एक बार इहदी आंसर की चेक करना पर मेरे हिसाब नाल कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज पूछा तो फ्रैक्शन किहदे रिस्पैक्ट च लैनी वो भी तो दसना पैना सी उन्होंने फ्रैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज विद रिस्पैक्ट टू व्हाट कुछ इस तरह का मैंशन नहीं है तो सेम ही आएगा चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 एक सिंपल जी गल सी कोई चीज़ 20 तो 60 होगी तो कितने परसेंट बढ़ गई तो मेरे हिसाब नाल बहुत बोनस क्वेश्चन सी एक छोटा जिहा पॉइंट मैंने कन्फ्यूज कर रहा है मैं फिर भी एक बार आंसर की चेक कर लूँगा हुणे ही चेक करके दसदा तो दोनों क्वेश्चन बोनस सी बच्चों जमा ही सौखे सी ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन मैनू कहंदा तुसीं अरथमैटिकल रीजनिंग चंगी तरह करो थोड़ा जिहा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चनस आपां रेशियो विच पढ़िया पार्टनरशिप विच पढ़िया इंप्लीमेंट हो रहे सी मैथ से एक चीज़ बहुत इंपोर्टेंट होंदी है कदों की एज्यूम करना राइट सैकेंड क्वेश्चन दस रहा परसेंटेज नूं चंगी तरह कर लो मैनूं लगदा है थर्ड क्वेश्चन फिर परसेंटेज आ गया इसदा कहंदा पढ़ो ध्यान नाल की कह रहा है 2018 तो 2019 तक मोहन की सैलरी 10% बढ़ गई ते अरुण की सैलरी 5% घट गई ठीक है दोनों की सैलरी 2019 इक्वल सी मतलब बदन घटन तो बाद इक्वल सी दैन अरुण सैलरी वाज वट परसेंट अरे ध्यान दियो देखो किथे ना किथे परसेंटेज का बेस कम आएगा इत्थे तुहानूं बिल्कुल कहते ना बेस ते वार मारिया मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस बच्चों को पकड़ लैंदा हुंदा सी उत्ते खड़ा हो जाता सी उपर खड़ा होकर चैक करता सी कि ये इत्थे गलती ना करे ये छोटे छोटे पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस भी आते हैं सिंपल ट्रस्ट कंपाउंड ट्रस्ट भी आते हैं बेसिकली सुनियो ध्यान 2019 दोनों की सैलरी मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा डिटेल तरीके तो बहुत बन जाएंगे 2019 दोनों की सैलरी इक्वल है तो मैं दोनों की सैलरी नूं 100 मान लिया 100 मनन नाल आई थिंक फ्रैक्शन आ जाएगी पर कोई गल नहीं आंदे हुण कोई चक्कर नहीं ठीक है तो अपने कोल एक तरीका होर भी है उहदे नाल थोड़ा जिहा टाइम बचेगा तुसीं किसी भी एक परसन पकड़ लो मान लो मोहन है मैं मोहन की सैलरी 2018 100 मान ली कितने परसेंट बढ़ी सी 10% तो 2019 कितनी होगी 110 होगी ठीक मैं सिर्फ एक चीज़ एज्यूम कर सकता मैं मोहन की सैलरी एज्यूम की 2018 की तुसीं दूसरे को भी 100 ना मान लिया जे बहुत बड़ा ब्लंडर होएगा हुण दूसरा परसन सी अपने को अरुण जेडे भी बच्चे ने परसेंटेज पढ़िया होएगा वो इस क्वेश्चन को बड़े कंफर्टेबली करेगा हुण क्वेश्चन है साफ साफ मैंशन है 2019 दोनों परसनस की जी सैलरी सी वो सेम सी तो जे मोहन की सैलरी 110 है तो यदी भी 110 है पर यदी सैलरी 5% घट के आई है 5% डिक्रीज हुई है तो इनीशियल वैल्यू ते जान वास्ते तुहानूं तुहाडा बेसिक यूज़ करना हुंदा है बेसिक कुछ भी हो जाता है तुसीं रेशियो यूज़ कर सकते हो तुसीं इक्वेशन यूज़ कर सकते हो पर तुहानूं बेसिक यूज़ करना हुंदा है लाइक अगर यह सैलरी एक्स सी तो आ 95% है ठीक है ये चीज़ां सीखण वास्ते तुहानूं बेसिक ते चंगी तरह काम करना हुंदा है तुसीं रेशियो भी यूज़ कर सकते होंदे हो पर स्टैप सेम ही होंगे 19/20 आ जाएगा तो एक्स तुहाडे कोल कितना आ जाएगा 2 × 11 2200/19 चलो हुण पुछया कि वो आपां देख लैंदे हां आपां नूं पुछया है 2018 विच जिहड़ी अरुण की सैलरी है वो किन्ने परसेंट वध है इस तो ठीक है 100 मनन दा हुण बेनीफिट होएगा तुहानूं 2200/19 नूं सॉल्व करदे हां 2200/19 नूं सॉल्व करदे हां तो कितना आएगा 22 एकम 22 30 11 110 11.5 समथिंग आ रहा है एक मिनट 22 1 22 30 लिखते ही जा रहा है कोई मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं हुई मेरे को तो आंसर 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है ऑप्शन नहीं हैगा उन्हें पूछा सी किन्ने परसेंट ग्रेटर है
अरुण सैलरी विद रिस्पेक्ट टू मोहन सैलरी। बिल्कुल गलती होने का चांस तो नहीं है, कोई गड़बड़ कितने होगी। 95/100 होंगे 19/20, एक्स कितना आएगा 220/19। बिल्कुल सही कहता मैं। एक बार दोबारा करिए, मैं तो एक छोटी जी चीज़ दस रहा, क्वेश्चन मैं सॉल्व करके नहीं आया, ठीक है। मैं भी चाहना तो इस तरह का रियलाइज़ होए कि एक स्टूडेंट पहली बार किमें ट्राई करता है, तो मैं उस तरह ही ट्राई कर रहा, ठीक है। मैं उस तरह ही ट्राई कर रहा, ध्यान दो, दोबारा कर दे एक बार। मैं मोहन की सैलरी 2018 में 100 मान ली, ठीक है। 10% वध गई सी, तो 2019 मोहन की सैलरी 110 हो गई। फिर मोहन की गल की मैं, क्वेश्चन साफ साफ लिखे हुआ सी दोनों की सैलरी बराबर है 2019, तो मतलब जो सैकेंड परसन है अरुण, उसकी सैलरी भी 2019 110 ही है, पर उसकी 5% की हुई सी डिक्रीज हुई सी, 5% डिक्रीज, ठीक है। तो 5% डिक्रीज की कहना होंगे, तुसी रेशो यूज़ कर लो, कोई चीज़ 100 है तो 95 होगी, तो B/19 हो गया, ठीक है। B/19 हो गया, 19 से 110 है, तो एक हिस्सा कितना हो जाएगा 110/19, तो B हिस्से कितने हो जाएंगे 2x11, B/2x11 2200/19, वही आ रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है। पूछा कि सी अरुण सैलरी इन 2018 वाज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन मोहन सैलरी इन 2018, ठीक है। 19 एक का टेबल गया 19 30 एक ही जाना चाह रहा है, 110 11.5% आ रहा है मेरा। मैं एक बार आंसर चेक कर लेना, ठीक है। आंसर की मैं तुम्हें भेजी सी ना, मैं एक बार आंसर की चेक कर लेना, बाकी मैनू मिस्टेक लग नहीं रही कोई, क्योंकि इतने मिस्टेक होगी तो बस फिर 5% डिक्रीज है ना, बिल्कुल वो 10% इंक्रीज है, बिल्कुल। एक सेकंड बच्चों, मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। बोल रहे हो क्वेश्चन सीखा 2018 तो 2019 वाला। एक मिनट बच्चों वेट करो हैं, मैं इस तरह ही पढ़ाना, थोड़ा जिहा स्लो रहिंदी मेरी स्पीड, पर मैनू हुंदा एक चीज़ चंगी तरह होए। 26 ये आंसर दिखा रहा है मैनू ऑप्शन सी 15.78, यानी 115 आना चाहिए सी, 19 30 बच रहा है, 30 बच रहा है। 2019 की सैलरी है 5 के टेबल से कट्टा है, बिल्कुल परफेक्ट किया मैं क्वेश्चन, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का आंसर सी बी, पिछला बिल्कुल सही किया सी आपां। ਇਹਦਾ आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया मेरे ते। मैं एक मिनट चेक करदा, तुसीं उन्नी देर नैक्सट क्वेश्चन देखो, आपां चेक करते हैं, गलती होनी नहीं चाहिए। किन्ने परसेंट वध है, किन्नी वध है, ਉਹਦੇ तो ही वध है, 100 वाले तो ही वध है, तो आपां नूं परसेंटेज कड्ढण दी लोड़ ही नहीं, 11.5 समथिंग ही आ रहा है, यही आंसर आ रहा है। चलो लेट मी चेक, राइट। तुसीं उन्नी देर नैक्सट क्वेश्चन देखो, तो बोनस सी, ठीक है, आप आंसर मैच कर लांगे। लो जी, पंजाब PCS 2021 कह रहा सी एक क्वेश्चन तो आके चक लो, क्योंकि कोई भी प्रीवियस ईयर SSC बच्चा करता है, ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर SSC करता है, यह क्वेश्चन तो घट्टो घट्ट 20-25 बारी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर। क्वेश्चन नंबर 14 एन ईजी वन, अ बोनस फॉर ऑल ऑफ यू, इन्हों आप वर्क करते हैं, ठीक है। मैं क्लास से बहुत बार समझाया, बिना कॉपी पेन तो भी करके दे सकता,
कि एक बच्चा तुहाडा फेल हो रहा है, एक बच्चा पास हो रहा है, तो जिहड़ी पासिंग है वो इन बिटवीन है। जिहड़ा बच्चा फेल हो रहा है वो 20% लै रहा है, किन्ने मार्क्स तो फेल हो रहा है 45। जिहड़ा बच्चा पास हो रहा है वो किन्ने परसेंट लै रहा है 45%, किन्ने मार्क्स ज़्यादा लै रहा है दैट इज 30। तो 20 तो 45 हो गया, तो किन्ने परसेंट वध गया 25% ਵਧਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 75 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਟਸ 'ਚ ਭਰ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ 25% 75 ਹੈ ਤਾਂ 1% ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 3, ਤਾਂ 100% ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 300। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ PCS 2021 ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11, 12, 13, 14 5 ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ PDFs ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਈਟ, ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਈਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੂੰਗਾ। नेक्स्ट, a container of milk was 3/4 full of full, 5 bottles are taken out and 3 bottles are put। अच्छा देखो क्वेश्चन अच्छा ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕੱਲਾ ਮਿਲਕ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਕਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ, ਜਮਾ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, क्वेश्चन विच कोई एक्चुअल वैल्यू हैगी है नहीं, एक्चुअल वैल्यू ना होए ना तुसी कुछ भी अज्यूम कर सकते होंगे हो, पर मैं डिनोमिनेटर के हिसाब नाल चलदा हुन्ना 4 ते 3, 4 ते 3, ठीक है। पर इस क्वेश्चन विच तुहानू एक चीज़ बड़ी इंपोर्टेंट है जिहड़ी पूछी है, हाउ मेनी बोटल्स ऑफ मिल्क कैन द कंटेनर कंटेन, ठीक है। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 4 ਤੇ 3 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 120 ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਕੰਟੇਨਰ 120 ਲੀਟਰ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 1200 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12 ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ 3/4 ਫੁੱਲ ਹੈ, 120 ਦਾ 3/4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 120 ਦਾ 3/4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90। 120 ਦਾ 3/4 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 90, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 90, ਤਾਂ ਉਹ 90 ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 90। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੋਤਲਾਂ ਮਿਲਕ ਦੀਆਂ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, 3 ਬੋਟਲਸ ਪਾਤੀਆਂ, 5 ਬੋਟਲਸ ਕੱਢ ਲੀਆਂ, 3 ਬੋਟਲਸ ਪਾਤੀਆਂ, मतलब 2 ਬੋਟਲਸ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ठीक है, ठीक है। एक तरह देखा जाए तो 2 बोटल्स ही कढ़िया, ठीक है, क्लियर है, राइट। एक तरह देखा जाए तो 2 बोटल्स ही कढ़िया ना, राइट। तो होया कि हुण कहंदा पूरा मिक्सचर, पूरा कंटेनर 120 लीटर सी, वो 2/3 फुल है। 2/3 कितना होंदा 120 का 80 लीटर। तो बेसिकली 90 लीटर तो 80 लीटर क्यों होया, क्योंकि 5 बोतलां कढ़ के 3 बोतलां पातियां, मतलब 2 बोटल्स कट गई ना वापस, 5 कटतियां 3 पातियां। 2 बोटल्स कट पाने की वजह नाल कितना मिल्क कट गया 10 लीटर मिल्क कट गया 2 बोटल्स की वजह नाल। 2 बोटल्स किवें आया, 5 बोटल्स कढ़ियां सी, 3 बोटल्स पातियां सी मिल्क दियां, सेम चीज़ां, मिल्क का ही कढ़िया सी, मिल्क का ही पाया सी, इत्थे कोई मिक्सचर है ही नहीं, सिंपल मिल्क की गल हो रही है। तो 10 लीटर कट गया क्योंकि 2 बोटल्स कटियां, यानी एक बोतल 5 लीटर की है, एक बोतल 5 लीटर की है, तो 120 लीटर इत्थों पता लग गया। 2 बोतलां घटियां तो 10 लीटर घट गया, मतलब एक बोतल 5 लीटर की है ना। तो 120 लीटर तो कितनी बोटल्स होणगियां पूछा तुहानूं 24, तुहाडा आंसर है। तुसीं हुण ये सोचो, तुसीं एग्जाम विच जिहड़े पेपर का एक हौआ बना के देता, आपां हले तक 15 क्वेश्चन किए हैं, सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन की DI नूं छड्ड के मैनू कोई भी कंटेंट औखा नहीं लग्या। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਊਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, PCS ਟਫ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸਕੋਰ ਕਰ ਜਾਓਗੇ,
ठीक है। ट्रस्ट मी पेपर का लैवल पंजाब PCS का इन्ना नहीं सी जिन्ना हाइप हो गया सी। रीज़न एक ही छोटा जिहा सी क्योंकि बच्चों ने अज तक इस तरह का कंटेंट देखा नहीं सी। बट कोई बैंक एस्पिरेंट या कोई कैट एस्पिरेंट गलती नाल ही पेपर देखेगा तो उन्होंने बहुत कंफर्ट जोन दिखेगा, क्योंकि इन्ने आसान क्वेश्चन तो कदे कैट बैंकिंग च आए नहीं मेन्स, राइट। चलो हाँ, एक होर सिंपल जहा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक होर सिंपल जहा क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो पढ़िया जी। द कोस्ट ऑफ MOWING, एक तो प्रनाउंस करना नहीं आता मैंने चंगी तरह, बहुत अच्छे नहीं हैगी प्रनाउंसिएशन, राइट। मोइंग वट एवर जो भी क्वेश्चन समझ लेना होना, पर मैं करना की है। द कोस्ट ऑफ मोइंग स्केयर लॉन एट द रेट ऑफ ₹700 INR इंडियन रुपीज पर हैक्टर। एक हैक्टर 700 रुपए दे कोस्ट पैगी 4375। कोस्ट कितनी पैगी 4375। एक हैक्टर कितने रुपए 700 रुपए, कोस्ट पैगी 4375। देखो मान लो आप कई तरह के क्वेश्चन क्लास च पढ़े हुए हैं, मान लो पेविंग करते हैं, टाइल्स लगाने, कुछ भी करते हैं, ठीक है। मान लो एरिया 200 मीटर स्क्वायर है तो 20 मीटर स्क्वायर ना ना मान लो एरिया, मेरी गल ध्यान ना सुनो, क्वेश्चन करवाने तो पहले एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देना। मान लो 200 रुपया मेरा खर्चा होया है तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपये सी, तो कितना एरिया होएगा, 200 ਨੂੰ 20 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो एरिया पता लग जाएगा, है ना। उस तरह टोटल पैसे ਨੂੰ 1 हैक्टर की कितनी कीमत है मोइंग की, ਤੁਹਾਨੂੰ टोटल रुपए ਨੂੰ 1 हैक्टर की कीमत ਨਾਲ डिवाइड करोगे तो एटलीस्ट ਤੁਹਾਨੂੰ स्क्वायर का एरिया पता लग जाएगा। कितना एरिया आएगा 4375 डिवाइड बाय 700, डिवाइड बाय 700 ਤੁਹਾਨੂੰ एरिया पता लग जाएगा। पर एरिया ਜਿਹੜਾ वो हैक्टर ਵਿੱਚ आएगा, एरिया ਜਿਹੜਾ किस ਚ आएगा हैक्टर ਵਿੱਚ आएगा। तो हैक्टर ਨੂੰ मीटर स्क्वायर ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਆਪਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ, 1 हैक्टर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। मैं मीटर स्क्वायर क्यों जा रहा क्योंकि अगे जाके क्वेश्चन मीटर स्क्वायर चला जाएगा। 1 हैक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक है। तो इनू मैं 10,000 ना मल्टीप्लाई करता, 2 जीरोज नाल 2 जीरोज गई, 7 के टेबल से कटना चाहिए, 7 6 के 42, 2 ते 5, तो 625 इंटू 100 62,500 मीटर स्क्वायर एरिया सी स्क्वायर का। टोटल कीमत नू 1 हैक्टर ते कितनी कीमत लग रही है डिवाइड करांगे तो एरिया आ जाएगा, पर एरिया हैक्टर च आएगा। मीटर स्क्वायर च जाने वास्ते गुना 10,000 किया, क्योंकि 1 हैक्टर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होंगे। तो मेरे को आ गया 62,500 मीटर स्क्वायर का एरिया। फील्ड केड़ी सी स्क्वायर। हम जे एरिया आ गया तो अपन को पता है एरिया की होंगे साइड स्क्वायर, तो 62,500 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है। तो एरिया मेरे को आ गया 250 मीटर, सॉरी साइड आ गई मेरे को 250 मीटर। साइड क्यों कड्डी वो भी दसदा हूँ, जेडे बच्चे ने मैंसुरेशन बेसिक वाला भी किया होएगा ना, वो लिए क्वेश्चन बोनस सी पेपर च। साइड कितनी आ गई 250 मीटर। हम साइड क्यों कड्डी, कहता कोस्ट ऑफ पुटिंग ऑफ फेंस, फेंस मतलब वायरिंग करनी है तो कोनिया ते करनी है उन्हें क्या, ठीक है। फेंस अराउंड द लॉन एट द रेट ऑफ 45.45 पर मीटर स्क्वायर इज। हुण मैनूं ये दसो पैरीमीटर कितना होंदा है। पैरीमीटर होंदा है अराउंड द वॉल, अराउंड है, इत्थे फेंसिंग करनी है, राइट, अराउंड द वॉल कोनिया ते, तो पैरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, साइड कितनी कड्डी सी 250 मीटर, तो 1000 मीटर पैरीमीटर है। 1 मीटर का रेट कितना है 45.45, तो 1000 मीटर का कितना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। डेसीमल अगे पिछे होएगा, आंसर आ जाएगा। मेहनत लगदियां ने। टोटल एरिया नू 1 हैक्टर एरिया नाल डिवाइड करोगे तो सॉरी टोटल पैसे नू 1 हैक्टर की कीमत नाल डिवाइड करोगे तो एरिया आ जाएगा। एरिया हैक्टर च आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो तुहाडे कोल मीटर स्क्वायर च आ जाएगा। फिर एरिया होंदा साइड स्क्वायर, उतो साइड आ जाएगी। साइड क्यों कड्डी, क्योंकि फेंसिंग करनी है कोनिया ते, राइट, बाउंड्रीज से। तो फेंसिंग करनी है तो पैरीमीटर चाहिए। पैरीमीटर की होंगे स्केयर का 4 इंटू साइड, तो 1000 मीटर आ गया। 1 मीटर की कीमत दी हुई है, 1000 ना मल्टीप्लाई कर दो। मैं इन्नी छोटी जी गल कहूँगा, जेडे बच्चे ने सिंपल एरिया वॉल्यूम की PDF लाई होएगी मेरी, वो लिए ये क्वेश्चन औखा नहीं है। तो मैं बहुत डिटेल नहीं कराया हुआ मैंसुरेशन, सिर्फ एक लैवल तक कराया हुआ जिन्ना अपने लिए सफिशेंट होंदा है।
क्लियर है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੀਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸੀ। ਆਪਾਂ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜੈਨੂਇਨ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਓ। ਅਰੇ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। A completes 2/3 of the job in 6 days। टाइम एंड वर्क तो डर नहीं लगता। जे 2/3 जॉब 6 दिन हो रही है तो पूरी जॉब कितने दिन होएगी? 9 दिन। पीडीएफ ते नॉर्मल क्वेश्चन है। 2/3 6 डेज च होंदा तो पूरा वर्क कितने डेज च होएगा? 1/3 8 दिन होंदा है तो पूरा कितने दिन हो जाएगा? 24 दिन। ठीक है। C3/4 12 दिन कर रही है, मतलब 4 चो 3 हिस्से 3 हिस्से 12 दिन हो रहा है तो 1 हिस्सा 4 4 हिस्से 16 दिन। ठीक है। सिंपल रेशो के हिसाब नाल मैं कर लेना हुन्ना। 2/3 की होंगे 3 चो 2 हिस्से 2 हिस्से 6 दिन लै रहा तो 3 हिस्से 9 दिन लैनगे। इस तरह मैं करता हुन्ना। ठीक है, आ गया मेरे को। हुण आपां टोटल वर्क एज्यूम कर लेने। 24 ते 16 का एलसीएम कितना होंदा है? 24 ते 16 तो 48 ते भी आ जाएंगे। 72 ते 16 नहीं आएगा। 72 का डबल की होंदा है 144। 144 ते ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी आ जाएगी। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। ਆਪਾਂ टाइम एंड वर्क की करते सी? टोटल वर्क एज्यूम करते सी जिथों आप एफिशिएंसी ले आते सी। एग्जैक्टली वही स्टेप मैं इत्थे कीता। ठीक है, हुण आप करना की है? ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। फिर ए ते सी चले गए, ए ते सी चले गए। बी बचा काम कितने दिन पूरा करेगा? मेरी गल ना ध्यान ना सुनिया। तिना ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। 16 6 22 22 ते 9 31। 4 दिन किया तो कितना काम हो गया? 4 × 31। हुण ए ते सी चले गए तो बचा कौन? बी। मैं मान लिया बी ने बचा काम एक्स दिन खत्म किया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 इक्वल टू 144। 124 उधर जाके माइनस कर दो। कितना सौखा क्वेश्चन सी। मेरी टाइम एंड वर्क की शीट लीविंग एंड ज्वाइनिंग टाइप बहुत औखे औखे क्वेश्चन है। ये उन्होंने एक सिंपल जहा क्वेश्चन सी। क्लीयर एवरीवन? तुसी एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एक तो 17 क्वेश्चन कितने सौखे सी। ठीक है, चलो मैं पहला सौखा कंटेंट ले लिया सी। फाइनली अ टफ क्वेश्चन, फाइनली अ टफ क्वेश्चन, दिमाग वाला क्वेश्चन। ठीक है, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन। ट्राई करोगे? देखो मैनू याद है जो ये पेपर होया सी, मैनू ये क्वेश्चन बहुत बच्चों ने डाउट पूछा सी। तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आया सी, मैं करा तो देवांगा पर तुहानू समझ नहीं आएगा क्योंकि ये लिए मैं शॉर्टकट रस्ता यूज़ करता हूँ। ठीक है, मैनू नहीं पता ये सोल्यूशन किवें होंदे ने किताबां च या समथिंग, बट वेन डायग्राम ना असी बैंक के बच्चों बहुत पढ़ाया मैं 5-6 साल अन अकैडमी ते ना, उसकी वजह नाल थोड़ा एक्सक्लूसिव लिया, चैनल ते नहीं आ पाया। पर बैंकिंग ना वेन डायग्राम बहुत डिटेल आते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन थोड़ा जा एक टेक्नीक है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को 6 या 7 बार पूछा जा चुका है तो मैंने याद है। उस तो बाद भी मैं कई बार शीट च भी इस तरह के क्वेश्चन करा देना होना। नैब तहसीलदार आए से भी मैं अपनी क्लासेस कराना होना, वो बाई चांस सेम ही आ गया सी किसी टाइम। चलो क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन कराने तो पहला ना थोड़ा जिहा आपां क्वेश्चन तो पिक्चर तो बाहर चलते हैं। क्वेश्चन आप बाद च करांगे, मेरी गल ध्यान ना सुनिया क्योंकि मेरी जी अप्रोच है ना उन्होंने समझना बहुत औखा है पर बहुत टाइम सेविंग अप्रोच है। थोड़ा क्वेश्चन चुटकियां हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन जिन्ना मर्जी लंबा खिंच लो। मेरी गल ध्यान ना सुनियो। एक ना क्वेश्चन कराया होया तुहानू क्लासेस, बी प्लेयर टेस्ट मैच खेडते, बी प्लेयर वनडे खेडते ते बी प्लेयर T20 खेडते हैं। ठीक है, 20-20-20।
तो बी कितना हो गया 60, पर क्वेश्चन च लिखा होंगे टोटल प्लेयर्स तो 39 है, फिर ए वी लवांगा तो कितना हो जाएगा 60, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया 21 एक्स्ट्रा आ गया, 21 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ एक्स्ट्रा आ गया। वो एक्स्ट्रा क्यों होंगे मैं तुहानूं दसदा। मान लो विराट कोहली है, वो टेस्ट भी खेलता है वनडे भी खेलता है, ठीक है, विराट कोहली टेस्ट भी खेलता है वनडे भी खेलता है, विराट कोहली तो इक्को ही है, पर काउंट तो 2 बारी हो गया ना। जो आप ए भी लिता सी तो विराट कोहली एक बारी एक्स्ट्रा नहीं आ गया। मान लो रोहित शर्मा वो वनडे भी खेलता है T20 भी खेलता है, टेस्ट नहीं खेलता, फिर रोहित शर्मा तो मैं 2 बारी ले लिया ना, रोहित शर्मा तो लेना ही है, 39 प्लेयर्स च रोहित शर्मा है, पर एक बारी एक्स्ट्रा ले लिया। मान लो जसप्रीत बुमराह T20 भी खेलता है टेस्ट भी खेलता है, ठीक है, इतने पावांगे तो जसप्रीत बुमराह तो एक ही है ना, जसप्रीत बुमराह तो एक ही है, पर वो एक बारी मैं एक्स्ट्रा ले लिया। मेरी गल समझ रहे, ठीक है। मान लो विराट कोहली है, टेस्ट भी खेलता है वनडे भी खेलता है, हूँ तो चलो संन्यास ले लिया, बट जनरली एक एग्जाम्पल दे रहा, तो विराट कोहली 2 थोड़ी होंगे, है ना, अनुष्का शर्मा गुस्सा कर जाएगी, विराट कोहली तो एक ही है ना, विराट कोहली तो एक ही है, पर जो आप इन्हों ऐड करांगे तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। मान लो शुभमन गिल है, इतने पा दें, वो टेस्ट भी खेलता है वनडे भी खेलता है T20 भी खेलता है, तो उन्होंने नाम 3 लिस्टां आ जाएगा, कितनी बारी एक्स्ट्रा आ जाएगा 2 बारी एक्स्ट्रा आ जाएगा। विराट कोहली टेस्ट भी खेलता है वनडे भी खेलता है, तो कितनी बारी एक्स्ट्रा उनका नाम आ गया, एक बारी एक्स्ट्रा आ गया। तो आज जो इंटरसैक्शन होंगे ना आ दोनों आ तीनों ये एक बारी एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। आ जो इंटरसैक्शन होंगे ना बिल्कुल मिडल वाला, ये 2 बारी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। मेरी गल समझे, मैं वर्ड यूज कर रहा एक्स्ट्रा। आ जो होंगे ना ये एक्स्ट्रा नहीं होंगे, ये ओनली वाले ही होंगे। ओनली मतलब कल्ले T20 ही खिडावांगे तेन, राइट। ये तुहानूं क्यों समझा रहा मैं, क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल दसी ये वाला, हर किसी के बस की गल नहीं सी, जेडे बच्चे ने कंसैप्ट नूं चज ना किया होएगा वही कर सकता सी, पर फिर भी अप्रोच बहुत लंबी सी। मैं तुहानूं कोई एक इस तरह की अप्रोच करानी जिहड़ी शायद तुहानूं समझ ना आए, पर बहुत यूजफुल अप्रोच है, ठीक है। तो आह एक बारी एक्स्ट्रा ऐड होंगे ने, आ 2 बारी एक्स्ट्रा ऐड होंगे ने। एक्स्ट्रा ऐड होंगे ने तो आप कह दें बी तो 60 हो गया, पर पेपर च लिखा होंगे टोटल प्लेयर्स तो 39 है, तो कितना एक्स्ट्रा हो गया 21, ठीक है। हुण आ जाओ मुद्दे ते। मेरी अप्रोच देखो, ठीक है। मैं कई बारी मैं तुहानूं सच्ची गल दसां, ये वाली अप्रोच मैं एक बार बच्चे तो ही सीखी सी 2017 कई बार आप पढ़ाने होंगे ना तो बच्चा इंटरप्ट कर देंगे, सर ऐदा कर सकते हैं, वो बच्चा थोड़ा जिहा दिमाग देंदा, साडा ज़्यादा लग जाता है। ध्यान दिओ, कितनी लैंग्वेजेस ने अपने कोल, फ्रेंच जर्मन चाइनीज़, फ्रेंच जर्मन ते चाइनीज़, ठीक है। फ्रेंच वाले किन्ने 80, जर्मन वाले किन्ने 90, चाइनीज़ वाले किन्ने 100, ठीक है। आपां नूं पुछया कि है ओदी गल भी आपां करांगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू स्टडी मोर दैन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मोर दैन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, मोर दैन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट का मतलब है या तो 2 वाले या 3 वाले, ठीक है। इज 50% मोर दैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। कहता आ जेडे चारों ने ना ये 50% वध ने ए ऑल द 3 सब्जेक्ट्स वाले तो मैं एक बार वेरीएबल लिख देना, वेरीएबल इन्हें लोड़ नहीं पैनी, कट वट देंगे आप, बट मैं वेरीएबल लिख देना एक बार। ए मैं मान लिया ए मैं मान लिया बी, ए मैं मान लिया सी, तो ए मैं मान लिया डी। देखिए चलो, ठीक है। हुण मैनू क्या गया, कहता जेड़ा ए बी सी ते डी है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हू स्टडी मोर दैन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। मोर दैन वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स मतलब एक तो ज़्यादा सब्जेक्ट्स, एक तो ज़्यादा वाले तो ये भी होंगे। ये 50% वध ने किहदे तो इहदे तो, ठीक है। किन्ने परसेंट वध ने 50%, 50% वध मतलब कितना होया 150%, राइट।
ਤਾਂ 50% ਵੱਧ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 150%। 150% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3/2d। ਦੇਖੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ। ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਹੈ 50% ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਦਾ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲੇ, ਆਲ ਦਾ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਡੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ। ਟੋਟਲ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 180, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ 180, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 80 90 ਤੇ 100, 100 ਤੇ 190 270, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ 90 ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 180 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 270 ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ 90 ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ 90 ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ A ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ, B ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ, C ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਇਆ, ਤਾਂ D 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ a + b + c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, d ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, d ਨੂੰ ਉਧਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। 1.5 d ਚੋਂ ਅੱਧਾ d ਗਿਆ, ਪੂਰਾ d ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ d ਬਚਿਆ, ਹਾਫ d ਬਚਿਆ। ਕਿੰਨਾ d ਬਚਿਆ, ਹਾਫ d ਬਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ a + b + c ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ d, ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ। ਹਾਫ ਤੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2.5d, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ d ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 90/2.5 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ 0 ਉੱਪਰ 25 30 75 ਤੇ 36 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਇਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਬੱਚੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ A B C D, ਉਹ 50% ਵੱਧ ਹੈ all 3 ਤੋਂ, ਮਤਲਬ 3/2d ਹੈ। 3/2 ਮਤਲਬ 1.5d, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ A B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਫ d। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਬੱਚਾ 180 ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 270, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ 90। ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, A B C ਤੇ 2d। 2d ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ all 3 ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 90 ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਖੇਲ ਸਮਝ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। A B C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਹਾਫ d। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ d ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ d ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ। ਵੇਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨੋਟਸ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਡੀ ਹੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੀ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਟਫ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 17 18 ਵਿੱਚੋਂ। ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ 30 35 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਥ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਡੀਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਲੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਲੇ, ਰਾਈਟ। ਸੈਲੋਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਮੈਂ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। 3 ਅਲਾਰਮ ਨੇ, ਇੱਕ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਕ 21 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੱਜਦਾ, ਇੱਕ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵੱਜਦਾ। 12 ਵਜੇ ਵੱਜੇ ਸੀ। ਫॉर विच वैल्यू ऑफ टी वुड दे बीप टुगेदर अगेन एट द अर्लीएस्ट। देखो बच्चों अर्लीएस्ट ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ b ਹੈ, ਇੱਕ 21 ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ t ਹੈ। b ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 2 2 ਤੇ 5 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 21 ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
3 इंटू 7 ठीक है। तो जी टी की वैल्यू है, जी टी की वैल्यू है और इस तरह का नंबर अगर होया ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ अर्लीएस्ट केस मिल जाएगा। गल ਨੂੰ समझो, टी की कोई वैल्यू होएगी ठीक है, कहता 3 अलार्म ने एक 20 मिनट बाद बजता है एक टी मिनट बाद ठीक है। आप अर्लीएस्ट डाटा कढ़ना है, मैं इत्थे 2 लिखिया तो टी जे 2 तो कटिंदा होया मेरा तो काम सौखा हो गया ना, मेरा तो एलसीएम बड़ा आएगा ही नहीं। 21 ਲਈ मान लो 7 यूज़ किया इधर, टी तो बिच ही निपट जाएगा। याद है तुहानूं शीटां 'च एक क्वेश्चन कराया सी, पहले 100 नंबर का एलसीएम एन है, पहले 105 नंबर का एलसीएम दसो, उही कंसैप्ट इत्थे लग रहा ठीक है। तो मैं टी नूं एक इहो जिहा नंबर लभना है जिहदे विच इह फैक्टर हो। हुण जे मैं 8 की गल करां तो एक 2 है, एक 2 है, इत्थे मैं 2 पावांगा पर टी लई मैनूं एक 2 होर लैके आना पेगा है ना, तां ही खत्म होएगा राइट। जे मैं 18 की गल करां, 18 की हुंदा है 3 इंटू 2, 3 एक तो आ जाएगा इत्थे पर एक होर 3 लैके आना पेगा। पर जे मैं 28 लवां, 28 की हुंदा है 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 मैं 20 लिए यूज़ करना ही नहीं, इधर 7 मैं 21 लिए यूज़ करना है तो 28 तो मेरी गल बन जाएगी अर्लीएस्ट, क्योंकि जे मैं इत्थे 28 रखांगा ना तां भी एलसीएम वही आएगा। जे मैं 28 नहीं भी रखता तां भी एलसीएम, कल्ला 20 ते 21 का जो एलसीएम होंदा ना नाल 28 नूं लवांगा तो एलसीएम बढ़ेगा नहीं। पर जे 20 21 दे नाल जे मैं इत्थे 8 ले लिया ना तो 8 2 ते कटिजेगा, फिर 2 ते कटिजेगा, फिर एक 2 नवां लियाना पेगा 8 नूं कट्टण वास्ते, क्योंकि 8 च 3 2 हुंदे ने। तो यह भी बहुत ही एप्टीट्यूड का दिमाग वाला क्वेश्चन सी कि फैक्टर्स वो चूज करो जो ऑलरेडी उन्हें है, क्योंकि एलसीएम में सेम फैक्टर्स मिलणगे। मान लो मैं एक नंबर इत्थे होर रखदा जिहड़ा 7 के टेबल भी आंदा है, 5 के टेबल भी आंदा है, मान लो 35 रखदा है ना, 35 विच कट्टिया जाएगा। पर सवाल उन्हें अर्लीएस्ट पूछा सी 28 तो अर्लीएस्ट आ जाएगा। 38 नूं सॉल्व करने वास्ते 19 चाहिए, 19 हैगा सी इन्हां विच नहीं। 8 वास्ते की चाहिए 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 तो है, एक 2 तो होर नवां लैके आना पेगा ना, तो एलसीएम बढ़ जाएगा, अर्लीएस्ट किवें हो जाएगा। समझ रहे हो गल नूं? तां इह एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन सी। इत्थों आपां नूं की सीखण नूं मिलिया, एलसीएमएसएफ दा चैप्टर चज नाल करके रखो। इत्थों आपां नूं की सीखण नूं मिलिया, वेन डायग्राम डिटेल फोन ते नहीं दस्सिया जांदा किहड़े चैप्टर करो, तुसीं पहलां पेपर नूं एनालिसिस तां करो, पीपीएससी नूं समझो। जे पेपर सब तो टफ सी अज तक का तो इनू ही पकड़ते हैं, सौखा आएगा तो अपना फायदा है। ये क्वेश्चन ने अपन की समझाया कि टाइम एंड वर्क चज नाल करके रखो, लीविंग ज्वाइनिंग दी टाइप सी, एरिया वॉल्यूम तो आना चाहिए, मिक्सचर तो आना चाहिए, पर मिक्सचर का इन्ना परसेंटेज तो आना चाहिए, परसेंटेज तो आना चाहिए, परसेंटेज तो आना चाहिए। बेसिक अरिथमैटिकल रीजनिंग आर एस अगर वाली जी दी हुई है आप पूरी करा देंगे जे कहोगे तो, वो भी तो आनी चाहिए है ठीक है। पीपीएससी ने तो कुछ टफ पाया ही नहीं सी हजे तक। एक क्वेश्चन होर कर लेने, ये भी असम्पशन बेस्ड क्वेश्चन सीगा, इक्वेशन बेस ठीक है, ये भी हाथ चला लेने। अज थोड़ा जहा क्लास छोटी रखते हैं क्योंकि ना थोड़ा लेट हो गया इसलिए ठीक है, फटाफट कर लेने। ध्यान दो 10 8 ते 6 कितना होया, 10 18 24 44, चलो मतलब जेडे इन्हां दे नंबर्स है बहुत छोटे होंगे। कोस्ट ऑफ ईच ऑफ द फ्रूट्स इन रुपीज, पॉइंट्स विच नहीं ले सकते, नैचुरल नंबर लेने। नैचुरल नंबर कित्थों शुरू होंगे 1 तो 1 2 3, पर उन्हें गल कही सी कि फ्रूट्स की कीमत सेम नहीं है, मतलब जे तुसीं एक नूं एक लैंदे हो तो दूजे नूं 2 लेना पैना, तीजे नूं 3 लेना पैना, जे पहले नूं 3 लैंदे हो तो फिर 2 या 4 कुछ होर लेना पैना है। पर क्योंकि उन्हें क्या कोस्ट ऑफ 4 मैंगोस एंड 3 गावास, मैं सब तो छोटे नंबर तो शुरू करांगा। जे मैं इनूं 1 ले ला तो 10 बन जाएगा, इनू मैं 2 ले ला तो 16 बन जाएगा, इनू मैं 3 ले ला तो 18 बन जाएगा। अरे पूरा ही बन गया, मैं हुंदा ना घुमा के दिंदा क्वेश्चन, उन्हें तो बच्चे वाला क्वेश्चन देता 1 2 3 पुट करते ही नंबर बन गया 44। मज़ा तो आता उत्थे 2 पैंदा, उत्थे 3 पैंदा, उत्थे 1 पैंदा। अलग अलग क्यों पाया है, क्योंकि उन्हें कहा डिफरेंट नैचुरल नंबर है। छोटे नंबर ही क्यों चूज़ किए, क्योंकि 26 तो फ्रूट पहला ही है, टोटल कीमत 44 रुपये, तो 1 2 3 ही होएगी कीमत, इस तो वड्डी की होएगी। तो मैं पीयर नूं 1 रुपया पाया तो 10 रुपये बन गया, इनू 2 रुपये पाया तो 8 2 16 बन गया, इनू 3 रुपये पाया तो 18 बन गया। बाय चांस इन्हां दा टोटल ही 44 बन गया। तो मैनू क्लीयर हो गया, पीयर 1 रुपये का है, गावा 2 रुपये का, तो मैंगो 3 रुपये का है। 3 रुपये का मैंगो है तो 4 तीए 12, 3 गावा कितने रुपये का सी 2 रुपये का, तो 3 इंटू 2 6, 12 6 18। तुसी 1 to 20 तक ये देखो पंजाब पीसीएस तुहानू कितना सौखा कंटेंट दे के गया। हुण जे बच्चा कहे मैं मैथ नूं तैयार ही नहीं करना सी, मैं पढ़ना ही नहीं सी, तो मैं नहीं मान सकता कि जिहड़ा बच्चे ने थोड़ी भी मेहनत की होएगी उंदा एटलीस्ट क्वालीफाई नहीं होया होएगा। आपां हजे क्वेश्चन बचे है 10 15 क्वांट दे,
ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।